Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming examination. So this video is quite different. It is not an examination preparation video, but it is very important. Why it is important? If you are a research, if you are an intern, if you are doing PhD, it means you are a research scholar, or whatever be the position, you are associated with research. ठीक है, आप रिसर्च से एसोसिएटेड हो. आप हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी के हो, बायोकेमिस्ट्री के हो, लाइफ साइंसेस के हो, बॉटनी के हो, जूलॉजी के हो, या माइक्रोबायोलॉजी के ही और भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, वैक्सीन टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या किसी भी डिसिप्लिन के हो, बायोटेक के, देन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, बिकॉज फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज. ठीक है, दिस विल बी द वॉल्यूम 1 वेयर आई विल बी प्रोवाइडिंग द 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब स्किल्स. ठीक है, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब स्किल्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक यू रिटेन इन अ लैब. ठीक है, आप कल को एमएससी कंप्लीट करके किसी लैब में ज्वाइन करोगे, बेसिक से स्क्रैच से आप ऐसा मान के चलो कि आप एक न्यूबी हो, आपको कुछ भी नहीं पता है. तो उस हिसाब से मैंने ये सीरीज़ प्लान की है, सो दैट इट विल हेल्प यू लॉट. दिस विल बी अ प्रैक्टिकल गाइड that entering into the laboratory, working under GLP and following the core safety procedures, so that you will not harm yourself, you will not anybody else, and you will take care of each and every property of the laboratory. So if you are a newbie, don't forget to subscribe the channel, and अगर आपको सच में मेरे content useful लगते हैं, do hit the like button because it makes me feel motivated. and अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So what we will cover in this video, the first and the foremost will be that how you can enter a lab. ठीक है, what are the things which we need to keep in our mind, and one more point which I want to discuss it here is, if you are going to work in any of the lab, like in other country as well, apart from whatever labs we are having in India, even if you are working abroad in any of the labs, so there are certain other things which you have to take care of. So I will also be unraveling all of those secrets. ठीक है, so laboratory entry rules and what are the do's and don'ts, along with good laboratory practices, GLP, what are the regulatory framework, core principles and documentation standard that you need to maintain and that you are expected to provide whenever they are asked. ठीक है, what are the laboratory safety whenever you are entering a laboratory, whether it is chemical laboratory, whether it is biohazard laboratory, or any of the laboratory, you need to take care of your safety as well, and apart from your safety, you need to take care of the resources of that lab and also the safety of others staying in the lab. So what are those things which I will be going to discuss? So stay tuned and do watch the video till the end. Now why this matters? Firstly, the priority. Personal safety and PPE compliance come before any experimental setup. आप ही ठीक नहीं रहोगे तो आप आगे क्या कर पाओगे. ठीक है, so this is the reason it is very very important, and it is the first priority to take care of yourself. ठीक है, 100% traceability. See, GLP requires every result to be traceable to raw data, method and analyst. ठीक है, so 100% traceability, reproducibility रखने के लिए हमें good laboratory practices को follow करना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी step में अगर हमें कोई setback मिलता है, so we can just trace कि कहाँ पे हमारी गलती हुई है and we can rectify it in future. ठीक है, ज़ीरो शॉर्टकट्स. लैब में काम करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है. देयर इज़ नो एंट्री शॉर्टकट, नो एक्सपेरिमेंटल सेटअप शॉर्टकट, नो डिस्पोजल स्टेप शॉर्टकट. नथिंग कैन बी डन इन अ शॉर्टकट वे. यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट रूट विच इज़ like prescribed by your higher authorities or the regulatory bodies. ठीक है, now section 1 we will be dealing with the laboratory entry. What every person must do and have before stepping past the laboratory door. आप किसी भी लैब में, whatever lab, किसी भी लैब में एंटर करते हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है. सो यू कैन सी हियर देयर आर सर्टेन
instructions on this piece of paper. There are certain biohazard sign and some more warning signs are there. So इसका क्या मतलब होता है, क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है. You can see here one emergency call things is there. आप कॉल कर सकते हो वहाँ पे. There are so many numbers are also written in a piece of paper, ठीक है. You can see here PPE kits are there and washing related kits are also there. You can use as per your need. Shoe racks are there. So many things are there whenever you are entering a lab. Now entry procedure, which is step by step badge and sign in. Like most of the labs, without your badge, without your ID card, scanning your ID card, you cannot enter, ठीक है. This is in very high reputed laboratories, like whenever you are working in abroad or any lab, so they must have a present ID badge to access control. कोई भी तो lab में नहीं चला जाएगा. So for that reason you need to have your own ID and also you need to sign in, like what is your entry time, what is your exit time. So they document everything, ठीक है. Now required PPE, ठीक है. Put on lab coat, safety glasses, closed-toe shoes and gloves before crossing into the work area. Whenever you are entering a lab, so enter करते ही आप PPE तो नहीं पहनते हो unless it is a BSL-3 और BSL-4 lab, ठीक है. अनलेस वो बहुत ज़्यादा हजार्डस है, वहाँ पे आप नॉर्मली जाते हो. लेकिन whenever you are entering your working area, you need to put on your PPE kits, ठीक है. Now check postings. Review door signage for active hazards, restricted status और do not enter holds before proceeding. आप बस घुसे चले जा रहे कहीं पे, आपने बोर्ड्स नहीं देखा, साइनेज नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कहीं पे एक्टिव हजार्ड, कुछ एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स रनिंग हो रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्टेटस का बोर्ड लगा होता है, ठीक है. वार्निंग साइंस कई सारे होते हैं, डो नॉट एंटर. बट वॉट एवर बी दी साइनेज, हम उसे इग्नोर करते हैं एंड घुसे चले जाते हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. आँख खुला रख के हमेशा जाना है. कभी भी फ़ोन्स देखते देखते आपको कभी भी कहीं एंटर नहीं होना है. नाउ एंटर एंड रिपोर्ट. Enter through the designated door only. Notify the supervisor or lab head that you are on site, ठीक है. Whenever this holds equally true whenever you are working in a off day, like weekends पे या किसी हॉलीडे के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आप लैब में काम कर रहे हैं, so your lab manager or your supervisor should know that you are on site, you are working in the lab whenever, like it is very important because अगर आपके लैब में कुछ भी मिस हैपनिंग होगा, so there are people who knows that somebody is in lab, we need to protect them, ठीक है. so they will take necessary action as per the demand. so you need to do all these things, ठीक है. बैज एंड साइन अपना लेके जाना है. एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम सब कुछ नोट करना है. वर्क एरिया में जाना है तो PPE पहनना है. पोस्टिंग्स देखना है कि कहीं कोई रिस्ट्रिक्टेड हजार्ड का बोर्ड तो नहीं है, कहीं डू नॉट एंटर का बोर्ड तो नहीं और आप वहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज यू नीड टू like notify your supervisor that you are working in your lab if you are working in odd hours also. और अगर आप रूटीनली भी काम कर रहे हैं, सो ये हमेशा नॉलेज में होना चाहिए दो चार लोग के कि आप लैब में हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट सेकेंड. Next one, so personal protective equipment, that is PPE. So minimum PPE required before entering any active laboratory area, right? So you need to mention it because you need to read it, like lab coat, button, clean and flame resistant where required, remove before leaving the lab. lab से निकलते वक्त आपको lab coat निकाल देना है because it is not for to wear everywhere. Safety glasses, ANSI rated eye protection worn at all times in designated zone, even if not handling chemicals directly. Fumes हो सकते हैं because our eyes are very very sensitive. Gloves, chemical resistant gloves match to the task, change when torn, contaminated or between task. एक ही gloves को आप सुबह से शाम पहने हुए हैं, that is also not recommended. Closed toe shoes आपको चाहिए, ठीक है. आपके जो फुट होने चाहिए वो पूरे कवर्ड शू में रहने चाहिए. नो सैंडल्स परफोरेटेड बिकॉज यू कैन हैव सम डैमेज फ्रॉम दी केमिकल्स और बायोहजार्ड थिंग्स,
ठीक है. फेस शील्ड इज इम्पॉर्टेंट एडेड फॉर स्प्लैश रिस्क टास्क, पोरिंग कोरोसिव्स, ऑटोक्लेव अनलोडिंग और प्रेशराइज्ड स्टीम्स. इन सब जगहों पे फेस शील्ड की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वेन एवर यू आर पोरिंग एनी कोरोसिव, लाइक अगर आप कंसनट्रेटेड एसिड को आप क्या कर रहे हो, पोर कर रहे हो, कहीं पे लिक्विड कर रहे हो, तो ज़रूरी हो जाता है. ऑटोक्लेव से अपना कुछ सामान निकाल रहे हो तो स्टीम एकदम से आता है प्रेशराइज्ड सिस्टम में, तो वहाँ पे रिस्क हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है. नाउ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड इन फ्यूम हुड रिस्ट्रिक्टेड और पर्टिकुलर जनरेटिंग टास्क पर दी एरियाज हजार्ड असेसमेंट. रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन भी चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि फ्यूम जनरेट होता है. ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी द कंप्लीट पीपीई किट, like mask is also there, eye protection is also there, overall head cover is there, everything is there. Now good laboratory practices, right? So good laboratory practices, the regulatory framework and daily habits behind untrustworthy defensible data. So it is very important. GLP is a quality system covering the organization, process and conditions where which non-clinical studies are planned, performed, monitored, recorded and reported. ठीक है. So there are also good laboratory practices, there are also good clinical laboratory practices. ठीक है. क्लिनिकल में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे good clinical laboratory practices भी होता है. Now it exists so that data generated today can be trusted. मतलब अगर आप एक दिन एक साल कुछ काम किए हो, अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर आपको खुद भी कैसे याद रहेगा, या फिर अगर किसी को वो रिजल्ट रिप्रोड्यूस करना है, सो हाउ यू विल डू इट. ठीक है. सो ऑन दैट नोट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू दी थिंग्स. ठीक है. सो हाउ यू विल डू इट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट it is also important because protection of the data integrity from generation through archival. ठीक है. If remember, if it wasn't written down, it wasn't done. अगर आपने उसे डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो no one will believe कि आपने उसे किया है. ठीक है. सो इसीलिए it is not a formality, it is the necessity. ये necessity है to लाइक दिस इज़ हाउ द साइंस बिकम्स क्रेडिबल. ठीक है. आप कर रहे हो कोई एक्सपेरिमेंट, भले वो गलत आए, लेकिन आपको उसको डॉक्यूमेंट करना है. कोर प्रिंसिपल्स ऑफ GLP, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, क्लियरली डिफाइंड रोल्स. सबके रोल्स डिफाइंड होने चाहिए. स्टडी डायरेक्टर, PI, QA, ट्रेंड एनालिस्ट, जितने भी स्कॉलर्स, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स लैब में हैं, सबका रोल असाइंड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए. SOPs वी शुड हैव फॉर एवरीथिंग. रिटन में SOPs होनी चाहिए, साइंड SOPs. जो भी चीज़ें हमें करनी है, छोटे से छोटे टास्क का हमें स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करना होता है. नाउ फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, एडिक्वेट स्पेस, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड फॉर एवरी पीस ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट. ठीक है. हर छोटे से छोटे चीज़ का हमारे पास में मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए. मेंटेनेंस लॉग बुक्स होना चाहिए. किस इंडिविजुअल ने यूज़ किया, कितने से कितने देर में यूज़ किया, क्या टास्क परफॉर्म किया, क्या कहीं कुछ दिक्कत आया उस इंस्ट्रूमेंट में. यू नीड टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. स्टडी कंडक्ट एंड रिकॉर्ड्स, प्रोटोकॉल फॉलो एग्जैक्टली, रॉ डेटा रिकॉर्डेड कंटेम्परेरीली, एट्रीब्यूटेबली एंड विदाउट अल्टरेशन. ठीक है. रॉ डेटा, you should have raw data of each and every experiment. Nobody will believe if you are providing the analyzed data and the processed data. They want the raw data. ठीक है. Quality assurance, an independent QA function audit studies and facility, verifying compliance separate from the study team. ठीक है. 10 golden rules of GLP I will quickly provide you. Always label, never mouth pipette, never eat, record immediately, keep. मतलब ये जितनी चीज़ें हैं वो आपको करनी ही है, बट ऑब्वियस है कभी भी माउथ पिपेटिंग आपको नहीं करना है. जो भी आप लिखते हो तुरंत रिकॉर्ड करो. कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं. PP हमेशा पहनो. डोंट टेक योर सेफ्टी फॉर ग्रांटेड. डिस्पोज वेस्ट करेक्टली. रिपोर्ट द एक्सीडेंट इमीडिएटली. ठीक है. सो एक्शंस कैन बी टेकन. Now data integrity. So the standard every record, paper or electronic, must meet attributable clearly who recorded it and when. कब किसने लिखा ये चीज़ होना चाहिए. You have to follow the ALCOA plus. ओरिजिनल होना चाहिए. फर्स्ट रिकॉर्डिंग नॉट अ लेटर कॉपी. कंसिस्टेंट होना चाहिए. क्रोनोलॉजिकली मैच अदर रिकॉर्ड्स. लेजिबल होना चाहिए. परमानेंट रीडेबल, नेवर ऑब्स्कर्ड. एक्यूरेट होना चाहिए. एंड्यूरिंग, प्रिजर्व फॉर द रिक्वायर्ड रिटेंशन पीरियड.
and also it should be contemporaneous, recorded at the time it happened, complete and available. ठीक है, available for review and audit. ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये सिर्फ ऐसे लिखा नहीं है, यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स. एंड आपको ये चीज़ें सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर आप कल को जाते हैं किसी बड़े लैब में, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, देन यू विल बी इन अ ट्रबल. ना गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, क्या नहीं करना है पहले मैं वो बता देती हूँ. रिकॉर्ड रिजल्ट्स ऑन स्क्रैच पेपर. ठीक है, स्क्रैच पेपर में नहीं लिखना है, रफ में नहीं लिखना है. यूज़ करेक्शन फ्लूइड, इरेजर और फुली ऑब्सक्योर एंड एंट्री, ये भी नहीं करना है. बैक डेट, प्री डेट, लीव एन एंट्री अनडेटेड. शेयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स और रिकॉर्ड अंडर समवन एल्स नेम. डिलीट और ओवरराइट रॉ इलेक्ट्रॉनिक डेटा फाइल, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है. दिस इज़ सीरियस कंसर्न. ठीक है, क्या करना है, हमेशा परफेक्टली डेटा को आपने रिकॉर्ड करना है इमीडिएटली नोटबुक में. प्रॉपर आपको यूज़ परमानेंट इंक, साइन एंड डेटा एवरीवेयर. Correct error with a single strike through, initial date and reason, record units, instrument ID, sample identifier with every value, leave no blank field using NA with justification if not applicable. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है. लेबोरेटरी सेफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट है, खाना नहीं है, हर केमिकल को जानना है. अकेले लैब में कभी काम नहीं करना है. यू शुड ऑलवेज हैव समबडी विथ यू. आपका हेड, अगर आप फर्स्ट टाइम लैब में काम कर रहे हो, लेबल एवरीथिंग, हर छोटे से छोटे चीज़ को, हर जार को, हर कंटेनर को, उसका कंसंट्रेशन क्या है, किसने बनाया है, कितना बनाया है, कब बनाया है. ठीक है, सब कुछ आपको एंटर करना है. वॉश बिफोर यू लीव. रिमूव ग्लव्स एंड वॉश हैंड्स बिफोर टचिंग फोन, डोर्स और योर फेस. स्टे अलर्ट. रिपोर्ट नियर मिसेस इमीडिएटली. दे आर द अर्लीस्ट वार्निंग ऑफ अ रियल हजार्ड. ठीक है, ये आपको फॉलो करना है. नाउ केमिकल हजार्ड में सिग्नल वर्ड्स डालने हैं आपको. डेंजर, वार्निंग लिखना है. पिक्टोग्राम्स यू कैन डू. हजार्ड स्टेटमेंट आप लिख सकते हो. प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो. ठीक है, बिफोर यू ओपन द बॉटल, लोकेट द सेफ्टी डाटा शीट. चेक सेक्शन 2 फॉर हजार्ड क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड पीपी. सेक्शन 7 फॉर सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज. मतलब मैं इन शॉर्ट अगर बताऊँ, कोई भी केमिकल आपको यूज़ करने से पहले देखना है कि वो क्या है. ठीक है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या होते हैं, केमिकल स्पिल हो गया है, सो what you have to do. फायर अगर कहीं हो गया, आई वॉश, सेफ्टी शावर, इवैक्यूएशन. सो ऑल दीज 4 यू हैव टू लुक आउट इन योर लैब कि क्या ये चारों अगर कभी हो जाते हैं तो इसका सोल्यूशन हमारे लैब में अवेलेबल है या नहीं है. ठीक है, सो अगर फायर होता है तो वी शुड जो ऑटो अलार्म है वो एक्टिवेट हो जाता है. इवैक्यूएशन आपको पता होना चाहिए. इमरजेंसी एग्जिट डोर पता होना चाहिए. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप लैब में काम कर रहे हो. वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल इन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लेबोरेटरी एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल और लेट्स से इफ़ यू आर डीलिंग विद ह्यूमन सैम्पल्स. ठीक है, जनरल नॉन हजार्डस केमिकल वेस्ट, बायो हजार्ड शार्प्स. ठीक है, किस में क्या क्या करना है मैं यहाँ से बता देती हूँ. सी, इफ़ यू आर हैविंग येलो बीन, human anatomical waste, blood stained cotton and pads, you will put it here. Mask, caps, fabric apron, you will put it here. In red you will put all the biomedical biohazards. ठीक है, syringe, IV sets and bottles, urinary catheters, gloves, ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक एप्रन्स, ये सारे वैक्यूटेनर्स वगैरह आप इसमें डालोगे. ठीक है, ब्लैक में आप क्या डालोगे, फूड मटेरियल्स एंड किचन वेस्ट, टी कप्स, कवर एंड रैपर्स एंड ऑल दिस थिंग्स. ब्लू में क्या डालोगे, यूज्ड वाइल्स, ग्लास बॉटल, यूज्ड एम्पल्स. शार्प इंस्ट्रूमेंट आप पंक्चर प्रूफ वाले में डालोगे. रेजर ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड्स, नीडल्स एंड लेंसेट वगैरह आप इसमें डालोगे. ठीक है, वाइट में. सो इफ़ यू हैव थरली हियर्ड दिस एंड आप इसे यूज़ करोगे एक्चुअल में अपने लिए, सो आई थिंक कि मैंने जितना भी इसमें बताया है, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. इस बात के लिए सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है. अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा हो, डू कमेंट बिलो फॉर पार्ट 2. जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे. आई होप यू लाइक्ड इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.